خوبصورت گلدستہ ہے جو اپنی تعلیم کی خوشبو پورے معاشرے کے اندر معطر کر رہا ہے، اس سے معاشرے کو ایک روشنی فراہم کر رہا ہے۔ ایک حقیقت، ایک روشنی، ایک وعدہ اس ملک سے وفا کرنے کا جو ہمیں ابھی پورا کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف چونڈا۔ کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی کا راز تعلیم کے درست ہونے میں مضمر ہے۔ کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی علاقہ، کوئی ادارہ اس وقت تک مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا جہاں پر تعلیم نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں ہم اس وقت دی اخلاص اسکول چونڈا، جس میں دی آئیڈیل اکیڈمی چونڈا کے اساتذہ اکرام اور ٹیچرز اور ڈائریکٹر صاحبان بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ چونڈا کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہاں پر ایک ایسا اسٹوڈنٹس ہے جس نے 1100 میں سے 1100 مارکس لیے ہیں۔ تو آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مارکس کیسے لیے ہیں، انہوں نے کیسے مارکس لیے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دانیال عزیز بھائی، آپ کو بہت بہت کانگریچولیشن۔ جی بالکل، آپ کو بھی، میرے اساتذہ کو بھی، میرے والدین کو بھی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنہوں نے آج جس نے اتنی بڑی کامیابی، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنی اکیڈمی کا نام روشن کروں، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے والد بھی ہیں وحید اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے صاحبزادے ہیں عرفات وحید صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ 1049 نمبر لیے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی میری اوقات نہیں جنہ کو رب نے مینوں دے دی۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سارا مزدوری کر رہا ہوں، گول گپیاں کی ریڑھی لگا رہا ہوں۔ اچھا، وقت پاس ریڑھی لگاتے ہیں؟ ہاں، ریڑھی لگاتا ہوں، وقت پاس کر رہا ہوں، لیکن ان کو تعلیم تربیت بھی کر رہا ہوں۔ آپ کے دونوں بچے ماشاءاللہ ٹاپر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے؟ میں اتنا نہیں، نہ میری اوقات اتنی، یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس وقت یہ رب تعالیٰ نے کیا ہے، آئندہ بھی رب تعالیٰ ہی کرے گا۔ میرا کوئی سر اسد صاحب سے پڑھا ہوں میٹرک میں نے بھی اسی اکیڈمی سے جو ہے نا کیا ہے۔ ہماری اکیڈمی ہے آئیڈیل اکیڈمی، ٹھیک ہے، اس کے جو رول ہیں، ڈسپلنز ہیں دوسری اکیڈمیوں سے۔ اکیڈمی کے ڈائریکٹر آصف ریاض صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں پر مٹھائیاں بھی سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور دونوں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جنہوں نے ٹاپر ہیں، بڑے اچھے مارکس لیے ہیں، اور ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز بنیں گے، دونوں بھائیوں کا۔ تو آئیے ڈائریکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں دی آئیڈیل اکیڈمی کے حوالے سے، اور تعلیم کا معیار کیسا ہے، ڈسپلن کیسا ہے، اساتذہ کیسے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں زبیر بھائی آپ کو اور آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنی زیادہ عزت بخشی ہے کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جو فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے مجھے وہ کامیابی ملی ہے جس کی مجھے ایک خواہش تھی۔ کیونکہ میں 2006 میں خود جو ہے نا، میں نے فیڈرل بورڈ اسلام آباد جو ہے وہ ٹاپ کیا ہوا تھا، اور میری یہ بہت زیادہ خواہش تھی کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ بورڈ ٹاپ کرے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ دانیال نے یہ میرا جو دلی خواہش تھی وہ پوری کر دی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جی، انشاءاللہ یہ جو ہے وہ اس چونڈا کی ہسٹری ہے کہ چونڈا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے نا وہ کسی بھی بچے نے بورڈ میں پورے نمبر یعنی 1100 میں سے 1100 نمبر لیے ہیں، اور الحمدللہ یہ آئیڈیل اکیڈمی چونڈا کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ نے 1100 میں سے 1100 نمبر پورے لیے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں جو میرے سننے والے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا میسیج یہ دینا چاہتا ہوں، اور اپنی جو ادارہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ صاحب، اس سے پہلے میں ایک اور آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سکولز، ادارے، اکیڈمیز بہت سارے ہیں، اس میں دی آئیڈیل اکیڈمیز، دی اخلاص اسکول، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی بالکل، ہمارا جو آئیڈیل اکیڈمی چونڈا کا جو مین تھیم ہے کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے ہم نے وہ پرووائڈ کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ اس کے لیے میری سب سے زیادہ جو ایفرٹ کرتے ہیں وہ میرے ٹیچرز کرتے ہیں۔ کیونکہ اکیلا میں جو ہوں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک ایک اچھی ٹیم نہیں بن سکتی تب تک کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی، ایون کہ آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں نا، وہ کام اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے پہلے
इस हवाले से मैं अपने टीचर्स का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को इतना अच्छा पढ़ाया है कि उस हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो बोर्ड में टॉप किया। उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारा टीचर का और पेरेंट्स का और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एकेडमी में जो काम करवाते हैं वो हम शाम टाइम यानी 6 बजे 6:30 बजे छुट्टी होती है एकेडमी से, उसी टाइम हम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारा का सारा जो है वो काम चला जाता है कि आज बच्चे ने ये पढ़ा है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, इस तरह ये होता है कि पेरेंट्स को ये पता चल जाता है कि आज मेरा बच्चा ये पढ़ के आया है। पेरेंट्स की मीटिंग वगैरह भी बिल्कुल हमारी जो है वो 15 दिनों बाद जो है वो पेरेंट्स की मीटिंग होती है जिसमें हम 15 दिनों का टेस्ट लेते हैं। 15 दिनों के टेस्ट के बाद बच्चे की जो कारकर्दगी होती है वो उस पेरेंट्स को जो है वो सेंड करते हैं और बाकायदा उनको बुलाकर फिर जो अच्छा स्टूडेंट होता है यानी जो अच्छे नंबर लेता है उसको बाकायदा अप्रिशिएट किया जाता है, उसके पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया जाता है। कितने स्टूडेंट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी में मैट्रिक और इंटर को मिला के तकरीबन 100 से अबव स्टूडेंट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारे पास मैट्रिक में तकरीबन जो थे 50+ स्टूडेंट्स थे और उन 50+ स्टूडेंट्स में से हमारे पास जो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1000 से अबव नंबर लिए हैं, उसमें से 1100 सबसे पहले हाईएस्ट, उसके बाद हमारे पास आए हैं 1096 1096, उसके बाद 1087। इसी तरह चलता चलता हमारे पास जो है वो तकरीबन जो है वो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1000 से ऊपर नंबर लिए हैं और बाकी जो तकरीबन 30 स्टूडेंट्स हैं उनके 900+ जो है वो मार्क्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी ऐसा स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके 900 से कम नंबर है। अच्छा। तो ये सब मेरी जो मैट्रिक का स्टाफ है, इंटर का स्टाफ है, उनकी ही बदौलत ये सब कुछ हुआ है। अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इस इलाके में सबसे अच्छे रेप्यूटेड टीचर हैं, अच्छा, और सबसे अच्छे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं वो इस एकेडमी में मौजूद हैं। एमफिल टीचर हमारे पास जो हैं वो इधर एकेडमीज में पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि टीचर्स को वो मुकाम जो पाकिस्तान में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, आउट ऑफ कंट्री में मिल रहा है। अमेरिका में देख लें किस तरह VIP प्रोटोकॉल के साथ 3 आदमियों को वो मुकाम दिया जाता है, उनमें से माजूर और साइंसदान और तीसरा टीचर होता है। हत्ता कि फ्रांस के अंदर टीचर को किसी अदालत में अगर जाना पड़ जाए तो उसको कुर्सी पेश की जाती है। कोरिया के अंदर वो मुकाम दिया जाता है कि जो मर्रात ऐसे VIP माहौल में मिलती हैं मशीरों को, वजीरों को, प्राइम मिनिस्टर को, वो टीचर को दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इसके बिल्कुल बरअक्स है कि वो टीचर को मुकाम नहीं दिया जा रहा। तो आइए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर आदिल अली साहब जो कि MA इंग्लिश हैं, MA टेफल हैं और बहुत एक्सपीरियंस का तल्लक है, उनसे ये पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपना विजन लेकर, एक अच्छा स्कोप लेकर वो जब एक अच्छी पोस्ट पर, आला ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो फिर वो अपने इलाके को भूल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्रोफेसर साहब, आप हमें बताएं कि ये क्या वजह है? जी सदीकी साहब, ये इसमें जो है वो सबसे बड़ा तो रोल जो है वो जहाँ तक भी कोई बच्चा पहुँचता है वो टीचर का रोल होता है, उसके पेरेंट्स का रोल होता है, फिर बच्चे की खुद की भी मेहनत होती है। लेकिन ये हमारे मुआशरे में जो है वो चीज़ देखने को आई है कि जहाँ पर भी बच्चा पहुँच जाता है, अगर वो मूव कर जाता है, यहाँ पर चविंडा में है तो चविंडा में हमारे इस वक्त जो मिसाल है आइडियल एकेडमी की, जो मिसाल है हमारे पास दानियल जो है उसका भाई जो है, और भी बहुत सारे जो है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर हैं यहाँ पर, जिन्होंने 1000+ लिया है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट को जो है वो मेरा मैसेज भी यही है, और जो लोग इस तरह करते हैं जो अपना इलाका ही छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ मैसेज यही है मेरा बीइंग ए टीचर कि अगर वो यहाँ से मूव कर जाते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि इस जगह ने जहाँ पर जो रह के वो पढ़े हैं, पले हैं, बड़े हैं, आगे बढ़े हैं वो, तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि उनको कभी भी जो है वो अपना इलाका नहीं भूलना चाहिए, अपने टीचर्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने पेरेंट्स की जो डेडिकेशन है उसको नहीं भूलना चाहिए। जहाँ पर उन्हें जो है वो अपना बचपन जो है वो गुजारा है और बचपन से जो है वो यहाँ जवानी की तरफ गए हैं, वो एक अच्छे मुकाम पर गए, एक स्टेटस पर गए हैं, तो उनकी जो बेस है, उनके जो एंसेस्टर हैं, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका वो यहीं से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो उनको यही सिखाना है, अब उनको मैसेज जो है वो देना है। जैसे ये दानियल है तो इसका माशाल्लाह जो है वो विजन बहुत अच्छा है, इसका विजन है कि मैंने जो है वो डॉक्टर बनना है,
डॉक्टर बन के जो है वो मैंने इंशाल्लाह अपने इलाके की जो है वो खिदमत करनी है, क्योंकि हमारा इलाका जो है वो एक बैकवर्ड इलाका है। यहाँ पर जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे सियालकोट में है, लाहौर में है, बड़े बड़े शहरों में। तो अगर इस जैसे स्टूडेंट जो है इसी डेडिकेशन के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ, इसी इंटेंशन के साथ, इसी इरादे के साथ जो है वो मेहनत करेंगे, अपने जहन में ये रखेंगे कि हमने आगे ज़रूर बढ़ना है, लेकिन अपने इलाके का ही नाम जो है वो रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का जो है वो नाम रोशन करना है, अपने जो टीचर्स असातिज़ा हैं इनके, उनका जो है वो नाम रोशन करना है, और अपने इलाके को कभी भी हम लोगों ने नहीं भूलना। ये इनके लिए जो है वो मैसेज है मेरा सारे स्टूडेंट्स के लिए। जैसे हमारे आइडियल एकेडमी का ये जो है वो स्टार है, दूसरे स्टूडेंट हैं, इसका भाई जो है वो भी हमारा यहाँ पर स्टार है। तो इनके लिए सिर्फ मैसेज यही है हमारी टीम की तरफ से, हमारे डायरेक्टर्स और सारी जितनी भी टीचर कम्युनिटी है, कि कभी भी हमें जो है वो इलाका जहाँ पर हम पले बड़े हैं उस इलाके को जो है वो नहीं है। जी बिल्कुल, जो हमारे स्टूडेंट यहाँ के दी आइडियल एकेडमी का स्टूडेंट दानियल वहीद इकबाल साहब ने जो 1100 नंबर लिए हैं, बड़ा फ़ख्र है और बड़ी खुश आइंद बात है कि उन 3 टीचर्स जिन्होंने अनथिक शब रोज़ की मेहनत है वो हमारे साथ मौजूद है, मैम सहर साहिबा और मैम कशफ साहिबा और मैम इकरा साहिबा। तो आइए मैम सहर साहिबा जो है ये फिज़िक्स की टीचर हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे इनको तालीम दिलवाई और कैसे इनकी तरबियत की है, क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दानियल बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। फर्स्ट से जब हमारे पास आया था उसके बाद इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत हमने की है, और इस बच्चे ने उस मेहनत का कह लें कि फल भी दिया है। हर लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज से, रिस्पेक्ट के लिहाज से इसने टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। कोऑपरेटिव बच्चा है, हर लिहाज से इसने कोऑपरेट किया अपने टीचर्स के साथ। तो हमें खुशी है कि इसने हम इतने मार्क्स लेके हमारा भी नाम रोशन है। मैम कशफ साहिबा, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहती हैं दानियल के। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आइडियल एकेडमी चविंडा में एज आ बायोलॉजी टीचर हूँ, और मैंने इस बच्चे को पढ़ाया। इवन के पूरी इनकी क्लास जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं ये थ्रू आउट द सेशन। दानियाल की अगर हम बात करें तो ही इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड ओबीडियंट स्टूडेंट। पूरे सेशन में इन्होंने बहुत अच्छी अपना जो है परफॉर्मेंस दी है, और बहुत ज़्यादा इनके साथ हमने मेहनत की है, और इन्होंने अपनी और हमारी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया, और आज ये इस मुकाम पर हैं। हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो इंशाल्लाह जब ये नेक्स्ट दोबारा एकेडमी में आएंगे तो इनके साथ दोबारा उसी तरह से मेहनत की जाएगी जिस तरह से ये फर्स्ट टाइम आए एकेडमी। तो इनको हमने, जैसे मैम ने कहा कि बच्चे सभी जो हैं हमारे पास बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने इनको तराशा, और ये आज आपके सामने है रिजल्ट। ठीक है, एज अ टीचर हमारा काम था कि इनको राह दिखाना, इनको गाइड करना, जो कि हमने प्रॉपरली जो है उसको अपने इस फर्ज को सरअंजाम दिया, इनको प्रॉपरली गाइड किया, और इन्होंने हमारी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया, और ये आज इस मुकाम पर अपनी पेरेंट्स की दुआओं, अपनी मेहनत और टीचर्स की दुआओं, और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला का करम है जो अल्लाह ताला ने इनको इतना इजाज़ बख्शा, और हमें बहुत ज़्यादा दिली खुशी है इनके लिए। अल्लाह ताला उनसे भी मैसेज लेते हैं, वो स्टूडेंट के हवाले से क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, और मैम सहर ने, मैम कशफ ने आई थिंक सो जो इसके बारे में कहा बिल्कुल ठीक था, और मैं बस यही कहूँगी कि ये वाकई ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको इतने नंबर जो हैं वो ये इतने नंबर ले सकेगा, और हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो बच्चा है ये हमारे एकेडमी का नाम जो है वो रोशन करेगा। जी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और फाइव, तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर ये भी मायूस हो जाते हैं कि साइंस बहुत मुश्किल है, तो आप कैसे उनको गाइड करें? नहीं, ये हम लोग मतलब स्टूडेंट्स वाकई ही ये सोचते हैं कि साइंस जो है वो एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग जो है वो बच्चों को इस तरह से गाइड करते हैं, हम लोग उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। हम लोग उनको ये करवाते ही नहीं कि रटा सिस्टम जो है वो रटे सिस्टम की तरफ आए। जब स्टूडेंट सोचता है जी, समझाने की हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और मतलब वो खुद से लिख सकें कि वो उन्होंने लिखना क्या है और वो क्या समझ रहे हैं। जब एक बात समझ आ जाए तो उसके बाद आई थिंक सो कि कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं रहती, और फिर साइंस तो फिर अगर जब बंदा मेहनत करे तो कोई भी चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से कदर की निगाह से देखा जाता है। कोई MNA बन जाता है, MPA बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाता है,
साइंसदान बन जाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, चाहे वो किसी भी मकाम पर पहुंचता है, वो टीचर की बदौलत से पहुंचता है, क्योंकि वो टीचर से ही तालीम हासिल करता है। और जो तालीम हासिल करने वाला शख्स है वो एक अक्लमंद बाशऊर शख्स होता है। और तालीम में, और देखें, एक अनपढ़ और जाहल में यही फ़र्क है। और कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह पाक ने ये बार बार ये अल्फाज दुहराए हैं कि जाहल और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते, जैसे आंखों वाले अंधे बराबर नहीं हो सकते। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए तालीम का मेयार बुलंद, और तालीम हासिल करने के लिए हमें हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो ज़रूर तालीम हासिल करवाएं बच्चों को, और क्योंकि तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी यही है। और कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह पाक ने 78,000 अल्फाज में से जो पहला लफ्ज़ प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर पर नाज़िल किया वो इक़रा था कि पढ़िए। तो ये पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर टीचर्स का स्टाफ मौजूद है, बिलाल साहब हैं माशाल्लाह, फैसल शफीक साहब हैं, मुस्तफ़ा साहब हैं, और इनकी प्रिंसिपल साहबा सहर अंसारी साहबा हैं, आसिफ रियाजा डायरेक्टर हैं, और इनके साथ अरसलान नसर साहब हैं, और इनके साथ फरहान नसर साहब, प्रिंसिपल साहबा सहर अंसारी साहबा हैं, उनके साथ मैम कशफ साहिबा हैं, उनके साथ मैम इकरा साहिबा हैं, और मैम ये सारा इनका स्टाफ जो है सारा एक गुलदस्ते की नवा है। और ये बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जो अपनी तालीम की खुशबू पूरे माशरे के अंदर मुअत्तर कर रहा है, इससे माशरे को एक रोशनी फराहम कर रहा है। ये इल्म फैला रहे हैं और ये सदका जारिया भी है। अल्लाह ताला इनको और कामयाबी और कामरानी दे। इस हवाले से ये एक तकरीब थी जो कि दानियाल और फरत वहीद के नाम से, और उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनके कज़न भी मौजूद हैं। प्रोफेसर आदिल साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और आसिफ रियाज साहब ने जो कि डायरेक्टर हैं इस दी आइडियल अकेडमी के। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी मिर्ज़ा नवीद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ऐसे प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।